So today in consolidation, direct we are considering one example. Example means what type of question can come in exam. If this is the question, what should be the answer? Question can be simple, medium category, standard. So we will do all the varieties. Clear? So write down the example. Then we'll solve from question sheet. First one simple. Write down. Example. Given balance sheet of or balance sheet as at 31st March 2024. H Limited, S Limited. Rupees. Capital and liabilities. Equity share. Capital 10 each. 2 lakh, 1 lakh. Reserves and surplus. Reserves and surplus. Under this, one item is profit and loss. $60,000, 40,000. Non-current liabilities. Nothing. Current liabilities. Trade payables. 40,000, 60,000. 3 lakh, 2 lakhs. Assets. Non-current assets. Okay. Now, property, plant and equipment. Property, plant and equipments. 1,30,000, 1,10,000. Investments.
8,000 equity shares of S Limited, 1,17,000. Current assets, $53,000, $90,000. 3 lakhs, 2 lakhs. Below. H Limited acquired shares in S Limited on 1/10/2023 when profit and loss balance of S Limited was rupees 15,000. Prepare consolidated balance sheet as at 31st March 2024. Okay. Okay. So we have to prepare CBS. Now, so we'll discuss the concept how to prepare CBS. And from this we'll get the idea. Then other questions, what possibilities are there? Balance sheet, all the items. Adjustment, something more. Okay. Only requirement is while doing the treatment, going through the language, we should be alert. Okay. फिर से in CBS, what is important? Say today acquired shares. Today before pre. Today onward post. ठीक है. Today whatever balance, whatever will do treatment. In adjustments, say for example dividend given. Today share acquired, today dividend received. So question is, this dividend is post profit or pre profit? Pre profit. पोस्ट है कहाँ? ठीक है. We have to find out whatever we paid and percentage shares acquired more than 50%. Whether we have paid more or whether we have paid less. Paid more goodwill, paid less capital. ठीक है. So preparation technique, one is
working notes style, and other is working notes in ledger. Working notes in ledger form, okay, debit credit concept, you are in a much better position. Our answer is consolidated balance sheet. All are working notes. Okay. So write down solution. Now, consolidated balance sheet. Now, write down. So, consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited. Consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited. Now, we have written here full form consolidated balance sheet. Later on, maybe we'll write down CBS. Now, first is एग्जाम में एकदम अच्छा से लिखिए, डिटेल लिखिए, नो प्रॉब्लम. Practice, you can save time. So, CBS. Write down. Now, capital and liabilities. Write down shareholders fund. Equity share capital. Reserves and surplus. Space. Non-current liabilities. Current liabilities. Current liabilities, some space. Then below write down assets. Non-current assets. Property, plant and equipment. Below write down current assets. Current assets. Whatever we'll write down.
ठीक है। Is our some item which are more or less sure, confirm, those we have written. Now, write down, for understanding purpose I am writing the things in one place, समझ में आएगा, ठीक है। लिखिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, CPL। ध्यान से इसको डबल कॉलम करना होगा, ठीक है। One is H, one is S. चार पांच एंट्री के लिए जगह रखिए। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, then write down cost of control account, CC account, cost of control account, cost of control account, minority interest account, minority interest account, ठीक है। Now, in the question, investment given, how many shares? किसी भी क्वेश्चन में H लिमिटेड, S लिमिटेड, how many shares acquired? लिख लीजिए 8,000 आउट ऑफ 10,000 शेयर्स। कितना हो गया? 4/5। तो माइनॉरिटी कितना हो गया? 1/5 पैरेलल। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, this means middle of the year, this means middle of the year, ठीक है ना। एकदम ध्यान से, and same question, other problem when we will solve, आपका 80% treatment easily you can do, ठीक है। 20% में alert। each item I'll give you the explanation, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। फर्स्ट आइटम, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन, होल्डिंग कंपनी हाउ मच गिवन, बैलेंस शीट में 2 लाख लिख दीजिए। लिख दिए? यस। एनी क्वेश्चन
बैलेंस शीट देगा, होल्डिंग कंपनी देगा, डेटा देगा, एज इट इज। दिस विल नेवर चेंज एक्सेप्ट क्रॉस होल्डिंग, एक्सेप्ट विच इज नॉट इन योर सिलेबस। तो आपका झमेला खत्म। ठीक है, अगेन, so equity share capital 2 lakh, meaning is clear. Next, subsidiary 1 lakh, subsidiary, how much our holding is 80%, so 1 lakh 80% कितना हुआ, लिखिए यहां पर सीसी में, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, माइनॉरिटी का कितना है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, मीनिंग क्लियर। So 80% will go to CC. Clear? 80% will go to CC, 20% minority. Clear? कोई डाउट किसी को होगा बोलना है, ठीक है। And whenever a task will be given, try. Chances you will do error, but you will learn. और अगर नई टास्क किए बस कट पेस्ट चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस गिवन, हाउ मच, 60,000 and 40,000. Write down. By balance BD 60 40, 60 and 40. सपोज क्वेश्चन में कुछ जनरल रिजर्व रहता, पॉसिबल, पीएल के जैसा एक जीआर अकाउंट भी खोल, क्लियर। आगे, नॉन करंट लायबिलिटीज नॉट देयर, ट्रेड पेबल्स हाउ मच, 40 एंड 60, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ट्रेड पेबल्स टोटल हाउ मच, 40 plus 60, clear, 40 plus 60, 1. तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड खत्म। मैकेनाइज्ड वे, if you solve, it will take 15 to 20 minutes. Process not followed, it will take 1 hour, आंसर राउंड। सब आप लोग को हिंट दे देगा, ठीक है। बाद में कीजिएगा उल्टा सीधा, देखिएगा क्या क्या होता है, ठीक है। फिर से एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट हाउ मच, 130 plus 110, टोटल 2,40,000, लिख दीजिए 2,40,000। इन्वेस्टमेंट सीसी में लिखिए, 2 इन्वेस्टमेंट्स, 1 लाख, करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स जो गिवन है 143,
Okay. Current assets 140. अगेन नीचे आते हैं हम लोग. H Limited acquired shares in S Limited on 1/10/2023 when PL balance of S Limited was 15. जिस दिन शेयर लिया उस दिन 15 था. अभी PL बैलेंस कितना है? 40. जिस दिन लिया था 15, अभी है 40. इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ? शेयर लेने के बाद 25 बढ़ गया. तो 15 इज प्री, 25 इज पोस्ट. 15 इज प्री, 25 इज पोस्ट. फिर से एस लिमिटेड के लिए सब रेवेन्यू, एच लिमिटेड के लिए जिस दिन शेयर लिया, अब तो पैसा देके खरीद रहे हो ना, तो वो कैपिटल है, पैसा दे दो, इन्वेस्ट कर दो. हम लोग को सीबीएस बनाना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, नॉट सब्सिडाइज. रियल पोजीशन किसका जानने का मन है? होल्डिंग का, नॉट सब्सिडायरी. सब्सिडायरी का जानने के लिए क्या करेंगे? उसका बैलेंस शीट देख लो. ठीक है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है. फिर से नाउ राइट डाउन H Limited in S Limited pre-profit. H Limited in S Limited pre-profit. ठीक है, ठीक है. जिस दिन शेयर लिया उस दिन पीएल बैलेंस कितना था? 15,000. हम लोग इसमें शेयर में 15,000 में हम लोग 80% शेयर लिए, तो हम लोग का कितना है इसमें? 4/5 comes to how much? 12,000. ठीक है, इसमें 12,000 हम लोग का है. क्लियर? अब हम लोग एक एक करके ट्रीटमेंट करते हैं. फिर से जिस कंपनी का शेयर ले रहे हैं उसका 15,000 प्रॉफिट है. अगर 100% शेयर लेंगे तो 15 हम लोग का हो जाएगा. 80% लेंगे तो 12,000 हम लोग का हो जाएगा. एस लिमिटेड पीएल इज हाउ मच? 40,000. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 20%. Write down to minority interest. 40,000, 20%, how much? How much? 8,000 लिखिए. माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बाई एसपीएल. ध्यान से एसपीएल, एसपीएल से आ रहा है ना.
माइनॉरिटी हैज नथिंग टू डू विथ प्री और पोस्ट, उसका 20% है, जो भी है उसका 20% उसका है, उसको प्री पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सा जगह पर आपको मिलेगा 15,000 में 12 उसको दिया तो 3 उसको दिया, फिर 25 हो गया उसमें 20 उसको दिया तो 5 उसको दिया, 3 और 5 8 हो गया। माइनॉरिटी को मतलब ही नहीं है, ठीक है। माइनॉरिटी को क्या टोटल का ये है, वो सब्सिडायरी है कि नहीं है उससे भी मतलब नहीं है माइनॉरिटी। सपोज आपके पास एस लिमिटेड का शेयर है, उसका 80% एच के पास है, आपको क्या करना है, किसी के पास हो, ठीक है। बहुत जगह सेग्रीगेट कर दिया है, बहुत जगह मिला दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगेन तो माइनॉरिटी हैज नो रिलेशन, माइनॉरिटी को दे दो। इस 40,000 में 15,000 फ्री है, होल्डिंग को मतलब है, जिस दिन शेयर लिया 15 में 12 फ्री है, वर्किंग हम लोग किए, लिखे यहां पर 2cc 12 और सीसी में बाई एसपीएल 12, कितना सीसी में एसपीएल, ठीक है। जिस दिन शेयर लिए उसका पीएल में 12 आपको मिल रहा है, ये 12 आपका है। आप किसी कंपनी में शेयर ले रहे हो, उसका प्रॉफिट है, आप ज्यादा दोगे कि कम दोगे, उसका पीएल है, प्रॉफिट फिगर है, तो आप पेमेंट ज्यादा करने को रेडी हो ना कम करने को रेडी हो। अगर पीएल उसका नहीं है कम करोगे, डेबिट है और कम करो, यही सब होता है ना। फाइनली दिया ज्यादा या लिया, गुडविल कैपिटल रिजर्व, ठीक है। दिस टॉपिक इंपॉर्टेंस इज, ये सब जो होता है ना लेटर ऑन, मर्जर डिमर्जर अमलगमेशन, ये सब जब आप सीखोगे ना तब आपका रियल माइंड खुलेगा, समझ गए। टाटा, बिरला, रिलायंस नाम सुने हैं, सुनते हैं ना, रिलायंस ये ले लिया, इसको भी ले लिया, उसको भी ले लिया, आपके माइंड में आएगा पैसा कहां से आता है इतना, समझ गए। ये सब पूरा स्कीम है, पूरा स्कीम। पैसा किसका है, सब पब्लिक का पैसा है, सब पब्लिक पैसा कैसे देता है, लाइन लगा के देता है, ठीक है। सिर्फ आपको अपना गुडविल बना लेना है और सामने वाला को लगना चाहिए कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। पैसा कौन कौन लगाएगा, आपका अपना आदमी लोग भी लगाएगा और आपका ओपोनेंट भी लगाएगा, ऊपर से कुछ बोलेगा अंदर से पहुंचा देगा, समझ गए। ये मार्केट है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। ये सब मैंने इसके जिस्ट को समझना पड़ेगा। चलो वापस, तो देखो माइनॉरिटी दे दिए, फ्री दे दिए, तो बाकी जो बच गया पोस्ट, राइट डाउन 2 HPL, हाउ मच 20, ये 40 है, बचा कितना
20 SPL। इस 20 के लिए हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं? नहीं, बैलेंस शीट। टू CBS, हाउ मच? 80। 60 पहले से था, 20 और आया, 80 हो गया। रिजर्व सरप्लस के अंदर में लिख दीजिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ मच? 80। ओके, चलिए सीसी में डिफरेंस कितना है? सीसी डिफरेंस कितना आ रहा है? 25। लिखिए 25 बाई, अब देखो हम लोग 1,17,000 पेमेंट किए, हम लोग को इक्विटी शेयर का 80,000 मिला और पीएल का सिर्फ 12,000, 92। बट वी पेड 117, वी हैव पेड एक्स्ट्रा हाउ मच? 25। ये हो गया बाई गुडविल। लिखिए एसेट्स में हेड इंटेंजिबल्स, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन 25। come to minority interest, how much coming? फिर अंदाजी to balance, transfer to consolidated balance sheet। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, माइनॉरिटी, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो? रिजर्व सरप्लस है ना, वहां पर एक लिख दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाउ मच? 28,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 28,000। चेक कीजिए कंसोलिडेटेड पीएल ओवर, यस, सीसी ओवर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ओवर, check the total, 4 lakh, फोर लाख 8,000। जब पूरा आंसर रेडी है 4,08,000। ओके, फिर से प्राइवेट कंपनी रिलायंस टेक अप इंडिया एज अ सब्सिडी। फिर हम लोग को जब भी कोई डिस्कशन करना है वो
रेंज वाला होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। आप बोले अगर हम सरकार को ले ले कैसा लगेगा, कैसे ले लोगे भाई आप, फिर हम क्या बोले। तो टेक्निकल सेट करना होगा। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है? थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में दे देता है। मेरा बात समझिए, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में, तो पब्लिक जरूरत प्राइवेट में चला गया, ये सब होता है, प्राइवेट के हाथ में दे दिया। ठीक है, बाकी लेना देना सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। क्लियर? मोर देन 50% कंट्रोल जब प्राइवेट के हाथ में दे दिया और किसी एक के हाथ में, ठीक है, वो फिर चला जाता है केस प्राइवेट के हाथ में। प्राइवेटाइजेशन वन वर्ड है ना, तो प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है? आंसर है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने आप बेचे, प्राइवेट वाला खरीद लिया। नाउ क्लियर? तो सब्सिडायरी को कैसे हम लोग एडजस्ट किए होल्डिंग में? ठीक है, तो क्या क्या नया नया चीज आया? पीएल चेंज हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। ओके, इन्वेस्टमेंट है ना, गायब हो गया, इन्वेस्टमेंट गया, उसके जगह 2-3 आइटम। क्लियर? एंड टैली भी हो गया। टैली क्यों हो गया? सब डबल एंट्री कंसेप्ट। ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट करके सब एडजस्ट हो गया। ठीक है, प्री पोस्ट का क्या चक्कर है? पीएल में जिस दिन लिया, जिस दिन था, उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ सब्सिडायरी कंपनी। ऐसा सोचो, सब्सिडायरी डिविडेंड डिक्लेयर किया और होल्डिंग वो पैसा मिल गया उसको, एंड दिस वाज आउट ऑफ प्री, दिस वाज आउट ऑफ, जो डिविडेंड मिला वो होल्डिंग का पीएल में घुसा हुआ है। कहां से मिला? सब्सिडायरी से। क्यों मिला? शेयर लिया इसलिए। पैसा कौन सा था? प्री। अगर वो प्री है तो उसको सीसी में जाना होगा। कहां जाएगा? और अगर पोस्ट है कुछ नहीं करेंगे, वो तो बैलेंसिंग में आ जाएगा। प्री सीसी में जाएगा, पोस्ट कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर? सबके पास क्वेश्चन शीट है? क्वेश्चन शीट से क्वेश्चन शीट निकालिए। नाउ आपके पास जो क्वेश्चन शीट है उसके अंदर में सिर्फ 9 क्वेश्चन है ओनली। ठीक है, ये 9 अगर आप अच्छा से बना लिए आपका काम हो गया।
So direct question number 9. Direct question number 9. ठीक है. So we are in answer 9. So balance sheet given. ठीक है. हाउ टू सेव टाइम. तो बैलेंस शीट गिवन रहने दो, सब आइटम होगा. ठीक है. रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन गिवन, 5 informations are there. H Limited acquired 1200 equity shares and 400 preference shares on 1/10/23. लिखिए यहां पर H Limited, S Limited, 1200 equity shares, 400 preference share डायरेक्ट चला जाएगा. डेट 1/10/23 में एक्वायर किया. कॉस्ट 280 एंड 1 लाख. इट मीन्स टोटल 380. एंड इन बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट वैल्यू हाउ मच? 380. मैचिंग ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो 2. तो 1200. ठीक है. अब यहां पर क्वेश्चन है आउट ऑफ. देखने से तो लग रहा है 2 लाख है, मतलब 2000. लेकिन क्वेश्चन में और जब गो थ्रू किए हम लोग या कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं उसमें? पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर on 1/4/23, H Limited issued 1 equity share for every 3 shares hold as bonus shares at a face value of 100 per share out of general reserve. No entry has been made in the books of H Limited for receipt of these bonus shares. ठीक है. Now balance sheet date is 30th September 24. राइट. यहां पर एक टेक्निकल थोड़ा मिस्टेक है. पॉइंट नंबर 3 में उसको 24 कीजिए. सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि 1/4/23 तो उस समय तो फिर तो शेयर ही नहीं लिया था. तब तो शेयर ही नहीं लिया था. तो 1/4/24, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3. और एच लिमिटेड एंट्री नहीं किया. एच लिमिटेड को भी शेयर मिला. बोनस शेयर फ्री में मिलता है, खाली नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया. 3 शेयर पर 1 शेयर. अपने पास 1200 है. कितना मिला? 400 प्लस 400 करो. आउट ऑफ 2000 कितना हो गया? 1600 बाई 4/5. तो माइनॉरिटी 1/5. यहां पर पूरा खेला डेट का है. क्या डेट इंपॉर्टेंट है? 400 शेयर्स कब दिया उसको? 1/4/24. कोई बात नहीं. The profit and loss account of H Limited had a credit balance of 30 as on 1/10/23 and GR of 50,000. कोई बात नहीं. अच्छा, शेयर वैल्यू अब यहां पर ध्यान से देखो कितना का है? 100 ईच का. राइट. ये सब इंपॉर्टेंट है. 100 ईच. पॉइंट नंबर 4, एस लिमिटेड ओन
H Limited 20,000 for purchase of stock from H Limited, meaning आपस में परचेज सेल हुआ है, इतना रुपया बाकी है, ठीक है। और क्या बोला, द एंटायर स्टॉक इज हेल्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 31/3/24 31/9। देखो 31/9 ठीक है ना, 30 करना होगा, क्या करना होगा देखो, 31 आएगा, 9 तो होगा ना, उसको 30 करो, 39 24। H Limited made a profit of 25% on cost। ये क्या होता है, एक वर्किंग कर लो, म्यूचुअल डेप्ट, ₹20,000, mutual debt how much? Now unrealized profit on stock 20,000 का सामान है, 25% on cost, it means 20% on sale price। How much? 4,000। ये म्यूचुअल डेप्ट है, प्लस आपस में माल खरीद बिक्री हुआ है ना, होल्डिंग सब्सिडायरी को, सब्सिडायरी होल्डिंग को जब माल बेचता है, ये प्रॉफिट को कैंसिल करना। अगर ये सामान बाहर वाला को बेच दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज सामान तो अपने पास ही पड़ा है, इसका मतलब 16,000 का सामान था, आपस में बेच के 20 बना दिया, कोई बात नहीं। और देखो डिविडेंड डिक्लेरेशन भी है, डिविडेंड, और कब डिविडेंड दिया, 1/12/23, 1/12 प्री प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, डिविडेंड दिया और डिविडेंड लिया और वो पीएल में डाल दिया। शेयर एक्वायर के पहले का प्रॉफिट से कुछ भी करेगा तो उसको सीसी में कोई बात। अब हम लोग एंट्री शुरू करें, ठीक है। राइट डाउन, फर्स्ट राइट डाउन CVS of H Limited and its subsidiary S Limited as at 39/24, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, रेट कितना है प्रेफरेंस शेयर का, 12%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी 100 ईच है, कोई बात नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला है शेयर होल्डर्स फंड। some space, then you write down non-current liabilities, non-current
liabilities, current liabilities, assets, non-current assets, current assets, no, consolidated profit and loss, H limited, S limited, ठीक है। और एक है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, cost of control account, cost of minority interest, ठीक है। रेडी, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 lakh, ready everyone, equity share capital 5 lakh, S limited is 2 lakh, now CC account, equity share capital 1,60,000 and minority 40, ठीक है। %12 preference share, holding company first 1 lakh, CC by 12% preference share 40,000, 800 शेयर, और माइनॉरिटी में 10,000, क्या बोलो, Sir, cost of control 12% प्रेफरेंस शेयर 50,000, 100 रुपया, मतलब 500, 400 शेयर होल्डिंग लिया, 100 किसके पास है, माइनॉरिटी के पास, सीसी में चला गया 40,000, 10,000
चलो रेडी. General reserve. We have prepared consolidated GR. Write down. By balance BD 1,60,000. And consolidated PL 150 and 90. Creditors. Current liabilities. Write down. Trade payables. How much? Inner column. क्योंकि हम लोग का म्यूचुअल डेप्ट है ना, चलो उसको बाद में. इनकम टैक्स 130 outer column. Under fixed asset, property, plant and equipment. Intangibles. Goodwill given how much? 1 lakh. Machinery 1,60,000. Vehicles how much? 2,50,000. Furniture investments CC account 3,80,000. Stock 2,10,000. Current assets stock 2,10,000. Debtors means trade receivables 2 lakh. Bank अभी तक ठीक है सबका? थोड़ा डर कम लग रहा है? बैलेंस शीट जितना भी बड़ा हो कुछ डरने का नहीं. इनर आउटर कॉलम करके तो लिख ही सकते हैं. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 1. ये ओवर हो गया या नहीं? H Limited acquired 1,200 equity shares, 400 preference share over. 2. The PL balance of H Limited credit balance 30 and GR that date was 50. वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं ध्यान से. H Limited in S Limited प्री प्रॉफिट जिस दिन शेयर लिया था उस दिन बैलेंस कितना था? अब ध्यान से. ठीक है. और पॉइंट नंबर
5 में क्या बोल रहा है? आउट ऑफ इट्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्लियर बोल दिया। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, कब डिविडेंड डिक्लेयर किया? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर शेयर एक्वायर के बाद किया। और प्रॉफिट कौन सा लिया? पहले वाला, प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन का मतलब शेयर लेने के पहले का। उसके बाद बोनस इशू भी है। बोनस इशू कब किया है? 1/4/24। बोनस के पहले और बोनस के बाद, अभी जो शेयर एस लिमिटेड का है बोनस के बाद कितना है? 2000 शेयर। 2000 में एक शेयर बोनस है, 3 नॉर्मल है। इसका मतलब बिफोर बोनस 1500 शेयर था। बिफोर बोनस हाउ मेनी शेयर्स? 1500। 500 बोनस है, 1500 पहले, 3:1 और 1 बोनस फॉर एवरी 3 शेयर्स। ध्यान से, तो ये जो 30,000 बोल रहा है, वहां से डिविडेंड दे दिया। कितना डिविडेंड दिया? ना, अलग से एक हम लोग कर देते हैं। एक वर्ड लिखिए, डिविडेंड रेक्टिफिकेशन। Dividend rectification entry. Now again, when in any question dividend is declared out of pre-profit and holding company has received, उसको कैंसिल करेंगे, नाम है डिविडेंड रेक्टिफिकेशन। तो डिविडेंड रेक्टिफिकेशन, जब कोई भी कंपनी माने सब्सिडायरी डिविडेंड पे करेगा आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और होल्डिंग कंपनी रिसीव कर लिया, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी का पीएल में वो ऐड है, उसको सीसी में ट्रांसफर कर, इसका नाम है डिविडेंड रेक्टिफिकेशन। पोस्ट होने से कुछ नहीं करेंगे, प्री होने से डिविडेंड रेक्टिफिकेशन। तो 1,50,000 इंटू 12%, ठीक है, इंटू 4/5, मतलब 18,000, 14,400। यस, 14। तो ये डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया? 18। इसका मतलब 30 से 18 चला गया। इसका मतलब इसका 4/5 कितना हो रहा है? 30,000 से 18,000 दे दिया, तो प्री प्रॉफिट कितना बचा? 12,000। 12,000 का 4/5 9,600, ठीक है। जिस दिन शेयर लिया वहां पे 30,000 था, तो 30,000 में 4/5 हम लोग का है, तो 30,000 का 4/5 कितना होता है? 24,000। 24 हम लोग का है मतलब है। वहां से 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसमें 4/5 हम लोग को मिल गया, और जो नहीं दिया उसमें भी 4/5 हम लोग का है। 30,000 का 4/5 हम लोग का कितना हुआ? 24,000। उसमें से 18 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 80% हम लोग ले लिया, 20% माइनॉरिटी। जो नहीं दिया उसमें 80% हम लोग का है। अब देखो दोनों मिला के, ये दोनों अगर ऐड कर दो 24,000 होता है,
होता है, यही है। बाकी प्रैक्टिस, डेट का खेला है। सपोज लक फेवर रहा, हो सकता है यही क्वेश्चन हो जाए। समझ गए? लेकिन ज्यादा खुश हो गए, भूल गए, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी रुको, क्वेश्चन खत्म होने दो, फिर अब यहां पर वापस आइए। कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड, अब ध्यान से, एस लिमिटेड का पीएल बैलेंस कितना है? माइनॉरिटी बोलता है हमको प्री पोस्ट से कोई मतलब नहीं है कितना 90, उसका 1/5 कितना है, कितना होता है, दे दो उसको माइनॉरिटी। ठीक है, चलो यहां पर लिखो 2cc 9600 SPL 9600, और डिविडेंड रेक्टिफिकेशन में कितना था? और लिखो एक सीसी ब्रैकेट में डिविडेंड, डिविडेंड रेक्टिफिकेशन 14400, कंसोलिडेटेड HPL ब्रैकेट में लिख लो डिविडेंड रेक्टिफिकेशन 14400। क्या बोलो? कंसोलिडेटेड पीएल 9600 आउट ऑफ 12000, और 18000 वाला जो डिविडेंड दिया उसमें 14400 मिल गया इसका, वो इसका 1,50,000 में ऐड है। ठीक है, अब देखो माइनॉरिटी हो गया, फ्री हो गया, बैलेंस कितना हो रहा है? HPL, how much coming balance? ना जी कुछ नहीं, 90 minus 27,600, 60, चलो 62,400 by SPL, 62,400। अब देखो to CBS, how much coming? 212,400, one 98,000. Write down balance sheet, consolidated profit and loss. CPL 198। अब देखो जीआर कितना था, जीआर कितना था जिस दिन शेयर लिया? अंदाजी नहीं, क्वेश्चन को देखो। पॉइंट नंबर 2 कितना था? अंदाजी जो मिल गया सामने वही दे दिया, लो 50,000। अब लिखो यहां पर, वहां भी प्री पोस्ट आता है, नीचे लिखिए H लिमिटेड, इन S लिमिटेड प्री जीआर
है ना, 50,000 था, लेकिन बोनस इशू हुआ है। बोनस इशू का पैसा कहां से आया, कितना पैसा चाहिए बोनस इशू के लिए? अभी 2 लाख इक्विटी शेयर है, इशू के पहले कितना था, 1,50,000। तो बोनस इशू के लिए कितना चाहिए, पूरा 50,000। क्या आएगा, नील। इसका मतलब ये जो 60 दिया हुआ है वो पूरा पोस्ट है, तो वर्किंग करके नील कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लिखिए, कंसोलिडेटेड जीआर में 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1/5 12, यस। सीसी में लिखिए, सीसी नहीं, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट, SGR 12 to HGR how much, balancing no CC, बोलो फिगर बोलो, 60 minus 12 48, SGR 48 to CBS 148, $148. Write down in balance sheet consolidated GR 148. Consolidated GR 148. PL को अभी इनर में लिख लीजिए 198, कुछ एडजस्टमेंट आएगा अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन 1/4/24 बोनस इशू ओवर 0.4, म्यूचुअल डेप 20। चलिए, ट्रेड पेबल्स लेस म्यूचुअल डेप्ट 4 नहीं 20, म्यूचुअल डेप्ट 20, आउटर कितना हो गया, ट्रेड रिसीवेबल से भी माइनस कीजिए, लेस म्यूचुअल डेप्ट, लेस म्यूचुअल 20 245, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक हाउ मच, वर्किंग वी हैव डन 4,000 रुपया, स्टॉक से कम कीजिए, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 4,000, हाउ मच 2,06,000। और कंसोलिडेटेड पीएल में आ जाइए, कंसोलिडेटेड कौन किसको बेचा, कौन किसको बेचा था स्टॉक, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है, अंदाज से सोच के नहीं। एच लिमिटेड को बेचा, तो प्रॉफिट बुक कौन किया था, जो बेचा वही ना प्रॉफिट बुक करेगा। कितना प्रॉफिट, 4,000। अब इस 4,000 को कैंसिल करना होगा, 4,000 को कैंसिल करना होगा। लिखिए, तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक 4,000, तो ये हो जाएगा 194। ये जो 198 लिखे हम लोग, क्या हो जाएगा 194, राइट। तो हम लोग का बैलेंस शीट में आ जाइए, ये जो 198 था इसको हम लोग कर देते हैं 194,
ठीक है, 0.4 भी ओवर हो गया, 0.5 भी ओवर हो गया। चलो सिर्फ क्लोज करना बाकी है। इसमें से हम लोग का कंसोलिडेटेड पीएल ओवर, जीआर ऑल्सो ओवर, सीसी, चेक द डिफरेंस। बाई गुडविल and minority interest to CBS. $80,000 minority, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक ऑप्शन होता है रिजर्व सरप्लस के, वहां लिख देते हैं, और नहीं तो एक लाइबिलिटी साइड में लास्ट आइटम लिख देते हैं। ठीक है, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन हाउ मच, 156, टोटल 3,80,000। $156, so assets plus 156, add goodwill on consolidation 256, 250। अब देखो वर्किंग में सीसी, कंसोलिडेटेड पीएल, जीआर, सीसी, माइनॉरिटी सभी क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए क्लोज कीजिए, बैलेंस शीट चेक कीजिए, चेक द बैलेंस शीट, चेक द बैलेंस शीट। both side 12,62,000, telling 12 lakh, बोलो 1,50,000 क्या 1,50,000? जिस दिन शेयर लिए 1.5 लाख कैपिटल था, उसके बाद बोनस दिया तो 2 लाख हो गया। 2 लाख का डिटेल दिया हुआ है, 2 लाख का डिटेल दिया, अब बोला 50,000 बोनस शेयर है, तो इसका मतलब पहले कितना शेयर था, ये आपको सब थोड़ी ना दे देगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2 लाख है, अब बोला एच लिमिटेड ट्रीटमेंट नहीं किया, शेयर लेके बच रख दिया, करना होगा। चलो टास्क में लिख लो नंबर 2,